وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ وزیر اعظم آج UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات ہوگی۔ مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ حج 2024 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آج سے آغاز۔ سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستوں کی وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مقررہ تعداد سے زائد درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی۔ خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی۔ آئندہ برس 89,000 سے زائد پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات۔ دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد۔ تقریبات میں شرکت کے لیے تقریباً 3,000 بھارتی سکھ پاکستان آئے۔ سکھ یاتریوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمام سہولیات میسر۔ سکھ برادری پاکستان کی میزبانی اور بھرپور انتظامات کی مشکور۔ ہمارا یہاں بہت خیال رکھا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم دوسرے گھر آئے ہوں۔ سکھ یاتری گرو نانک نے محبت اور امن کا پیغام عام کیا۔ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ ان کی تعلیمات کے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ بھارت میں اقلیتوں پر مظالم تاریخ کا حصہ ہے۔ بھارت میں منی پور میں 150 مسیحیوں کو قتل کیا گیا۔ وزیر مذہبی امور احمد کا ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم استھان میں تقریب سے خطاب۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن سماعت کریں گے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ دلائل کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ غزہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آخری روز۔ آج مزید اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع۔ اتوار کو 39 فلسطینی قیدی اور 13 اسرائیلی شہریوں سمیت 17 یرغمالی رہا کر دیے گئے۔ 3 روز کے دوران مجموعی طور پر 117 فلسطینی قیدی اور 50 سے زائد یرغمالی رہا ہوئے۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع کے لیے مصر، قطر اور امریکہ کی کوششیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کا انکار۔ نیتن یاہو کا ہر 10 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ میں 1 روزہ توسیع کی پیشکش۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ مہم کے دوران بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جس کا مقصد ملک کو مکمل طور پر پولیو سے پاک کرنا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے حفاظتی قطرے پلائیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی۔ مزید 1,640 غیر قانونی افغان باشندوں پر مشتمل 425 خاندان اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ واپس آنے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد 2,54,000 سے تجاوز کر گئی۔ غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے سے ہماری معیشت بہتر ہوئی۔ اسٹریٹ کرائمز اور چوری کے واقعات میں کمی آئی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلا پر عوام کی رائے۔ پاکستان اور وسطی ایشیا ممالک کے درمیان تجارت کے لیے 4 راستوں کا استعمال۔ ترکی اور روس کے متبادل راستے بھی موجود۔ تجارت کے لیے صرف افغانستان پر انحصار کا تاثر غلط۔ پاکستان اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے درمیان تجارت 3 سالوں میں $100 ملین سے بڑھ کر $487 ملین ہو گئی۔ 2024 کے آخر تک قازقستان کے ساتھ تجارتی حجم میں کئی گنا اضافہ متوقع۔
नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक का मिशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और साइबर टेक्नोलॉजी के शोबों में तहकीक और जद्दत को फरोग देना है। ये इदारा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को खिदमात फ्राहम करने के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की कई कंपनियों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क ने कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए चोलिस्तान में जदीद तरीन ज़रई निज़ाम तैयार कर लिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उन्नीस सौ 71 की पाक भारत जंग, भारतीय मेजर जनरल्स पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के मोतरफ। भारतीय फौज तादाद और जंगी साजो सामान के लिहाज से बहुत बेहतर थी। पाकिस्तान की बहादुर फौज तादाद और कम जंगी साजो सामान के बावजूद इंतहाई सख्त हरीफ साबित हुई। भारतीय मेजर जनरल गोरचंद सिंह का पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और हिकमत अमली का एतराफ। बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान की आज 67वीं बरसी। मौलाना जफर अली खान मुसन्निफ, शायर और तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के अजीम रहनुमा थे। उन्होंने मुसलमानों में सियासी शऊर उजागर करने और जज्बा आज़ादी बेदार करने में कलीदी किरदार अदा किया। लाहौर शहर की फिजा आज भी स्मॉग की लपेट में है। स्मॉग की रोकथाम के लिए 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए, कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गई, दुकानों रेस्टोरेंट्स के औकाते कार भी बदल गए। स्मॉग के असरात से बचने के लिए शहरियों पर मास्क पहनने की पाबंदी बरकरार है। पंजाब हुकूमत स्मॉग के तदारुक के लिए खातिर खा इक़दाम उठा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोग। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। जनूब मशरक़ी सिंध में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात। दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप मुकम्मल। स्क्वाड कल नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में दूसरे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। टीम 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात होगी, जिसमें इक्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और दीगर अहम शोबों में ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ज़राअत, बैंकिंग, एविएशन और मवासलात के शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कुर्बत के रिश्तों पर उस्तवार देरीना दोस्ती वक्त के साथ गहरी से गहरी होती चली जा रही है। दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों के एतमाद पर कायम गैर मुतज़लज़ल ताल्लुकात दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों दोस्त ममालिक को मजीद करीब लाने और दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तवानाई, ज़राअत, लॉजिस्टिक, कानकनी, एविएशन और फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस दौरे के दूरस्थ नताइज आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस दौरे के बाद नज़र आने शुरू होंगे, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ी वसी तादाद में पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान 8 एग्रीमेंट साइन करेगा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, बैंकिंग सेक्टर में, ज़राअत में, ट्रांसपोर्टेशन में, सिविल एविएशन में। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से नई राहें खोलने में अहम साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं हज दरखास्तों के हवाले से। हज 2024 के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज आज से हो रहा है।
सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरअंदाजी की जाएगी, जबकि ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। वाज़ेह रहे कि 16 दिसंबर 2024 तक कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। पासपोर्ट अप्लाई करने के टोकन पर भी हज दरख्वास्त प्रोसेस हो सकेगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 नशिस्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जमा होंगी। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी अनीक अहमद का मरकज़ी तकरीब से खिताब। ननकाना साहब में जन्मदिन तकरीबात में शिरकत करके बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि सिख कौम को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनका मजीद कहना था कि गयानी हरप्रीत सिंह ने कुरान मजीद का गोरमुखी ज़बान में तर्जमा किया। गयानी हरप्रीत सिंह ने कुरान मजीद का पैगाम दुनिया भर में फैलाया। अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल बनाया है। सिख और मुसलमान एक दूसरे के बहुत करीब है। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में तमाम गुरुद्वारों की हिफाजत करेंगे। गुरुद्वारों की हिफाजत और मिसाली ताज़ीन व आराइश हमारी जिम्मेदारी है। अनीक अहमद ने कहा कि सिख कौम की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। करतारपुर यात्रा के लिए फ़ीस कम करने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजीद 100 कमरे तामीर किए गए हैं। सिख यात्रियों का इंतजामात से खुश होना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। उनका मजीद कहना था कि सिख यात्री पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को दिखाएं। सिख यात्री पाकिस्तान से अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएंगे। भारत में मणिपुर में 150 मसीहियों को कत्ल कर दिया गया। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम तारीख का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की खिदमत हमारा फ़र्ज है। सिख मज़हब में ननकाना साहब को एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि बाबा गुरु नानक साहब की पैदाइश यहाँ हुई थी। ननकाना साहब में गुरु नानक का मज़ार बैनुल मज़ाहब हमआहंगी और मजहबी इत्तेहाद की हकीकी अलामत है। हर साल दुनिया भर से सिख यात्री बाबा गुरु नानक के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं और मजहबी रसूमात की अदायगी करते हैं। गुरुद्वारे पर आने वाले सिख यात्रियों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर सहूलियात पहुँचाई जाती हैं। सिख बिरादरी पाकिस्तान की मेज़बानी और भरपूर इंतजामात की मशकूर नजर आई। इस हवाले से बरतानिया से आए सिख यात्री जरनैल सिंह रंधावा का कहना था कि हमारा यहाँ पर बहुत ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम दूसरे घर आए हों। बड़ा अच्छा लगा कि सारी फीलिंग हो गई दूसरे घर आ गए हैं, अपने दूसरे घर आ गए, घर चो आए दूसरे घर आके बह गए हैं। वो पब्लिक बहुत प्यार कर दिया, प्रबंध बड़े अच्छे है गुरुद्वारा साहब के, सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा अच्छा है, साडा बड़ा ख्याल रखते हैं। असी बहुत खुश हैं और खुश भी जावांगे। यहाँ पर आपको खबर देते चलें एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की, जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट दलाइल का बाकायदा आगाज करेंगे। अमजद परवेज एडवोकेट आज एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देंगे। एवन फील्ड के बाद अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में अपील पर दलाइल का मरहला आएगा। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको खबर दें, गजा में 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी का आज आखिरी रोज़ है। जंगबंदी के आखिरी रोज़ मज़ीद फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली गैरमालियों की रिहाई मुतवक्के है। इसराइली हुक्काम ने तस्दीक की है कि आज रिहा होने वाले 11 इसराइली गैरमालियों की फहरिस्त उन्हें मौसूल हो गई है। राइटर्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हमास ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 17 यरगमालियों को रिहा किया। रिहाई पाने वालों में 11 इसराइली, 3 थाई और 1 रूसी शहरी शामिल था। जंगबंदी के दौरान अब तक 117 फ़लस्तीनी कैदी और 39 इसराइली गमाली रिहा किए जा चुके हैं। हमास ने थाईलैंड के 17 शहरियों समेत फिलिपाइन और रूस के एक शहरी को भी रिहा किया है। उधर इतवार को फ़लस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के लिए जेल के सामने पहुंचने वाले फ़लस्तीनी शहरियों पर इसराइली फ़ौज ने रबड़ की गोलियां चला दी और आंसू गैस की शेयरिंग की, जिससे 21 फ़लस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहरियों का अपने इलाकों में पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जंगबंदी के दौरान फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। इतवार को ईंधन और गैस के 4 ट्रकों समेत मजीद 120 इमदादी ट्रक भी गजा में दाखिल हुए।
دوسری جانب مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے گزشتہ نام نہاد چھاپوں کے دوران متعدد فلسطینی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ اور مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی دہشت گردی میں اب تک 15,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، قطر، مصر اور امریکہ نے غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی میں توسیع کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حماس جنگ بندی میں 2 سے 4 روز کی توسیع پر رضامند ہو گیا ہے، تاہم اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ رائٹرز کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ مزید فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شرط پر وہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عارضی جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج پوری قوت کے ساتھ غزہ میں اپنی مہم دوبارہ شروع کرے گی۔ نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ ہر 10 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی میں 1 دن کی توسیع کی جائے گی۔ اور ناظرین، امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں 3 فلسطینی طلبہ شدید زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ برلنگٹن میں یونیورسٹی آف ورمونٹ کے قریب پیش آیا۔ مسلح شخص نے مبینہ طور پر نفرت انگیزی کی بنیاد پر فلسطینی طلبہ پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی معاشی پالیسیوں کے ثمرات پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ کاروبار کے آغاز میں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس میں 59,300 سے زائد پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور ناظرین، اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پاکستان افغانستان سے گزرنے والے راستوں کا استعمال کیے بغیر ہی وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے افغانستان پر بالکل انحصار نہیں کرتا۔ پاکستان میں وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ تجارت 3 سال میں $10 کروڑ سے بڑھ کر $487 ملین ہو گئی ہے۔ پاکستان افغانستان کو نظر انداز کرتے ہوئے وسطی ایشیا میں تجارت کے لیے ترکی اور روس کے متبادل راستے بھی استعمال کر رہا ہے۔ اس وقت وسطی ایشیا ریاستوں کے ساتھ تجارت کے لیے 4 راستے استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں ٹرانزٹ کا وقت تقریباً 13 سے 15 دن ہے۔ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن نے دواسازی، ٹیکسٹائل، چمڑے، جراحی کے سامان، مشینری اور کیمیکلز لے جانے کے لیے 240 سے زائد کامیاب آپریشنز مکمل کیے۔ NLC نے سویلین ٹھیکیداروں اور ڈرائیوروں کو ملازمتیں دی جنہیں ڈالر میں اچھی رقم ادا کی جاتی ہے، جس سے قومی خزانے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر افغانستان کا راستہ سب کے لیے باہمی فائدہ مند شرائط پر کھولا جاتا ہے تو پاکستان کو اس راستے کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے جسے پاک فضائیہ کی مدد سے قائم کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ صنعت، اکیڈیمیا اور حکومت کے درمیان مشترکہ کام کے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا مشن انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہوا بازی اور سائبر ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تحقیق اور جدت کو فروغ دینا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کو خدمات دینے کے ساتھ ساتھ ادارہ متحدہ عرب امارات کی کئی کمپنیز میں ٹیکنالوجی منتقل کر رہا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹری کی 2 اہم کمپنیوں بیکار اور ٹرکش ایروسپیس انڈسٹری تائی نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں اپنے دفاتر قائم کیے ہیں۔ ٹیکنالوجی پارک نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے چولستان میں جدید ترین زرعی نظام تیار کیا ہے اور پاکستان کے اہم علاقوں بشمول راولپنڈی، لاہور، کراچی اور پشاور میں اپنے ہیڈ کوارٹرز قائم کیے ہیں۔ خبر ہے جنوبی وزیرستان سے، جس کے علاقے سراروگا میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران دونوں اطراف سے فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا، جس میں 8 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ مارے جانے والے شرپسندوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کسی بھی ممکنہ شرپسند کی موجودگی کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے اور پاک فوج ملک سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک سے غیر قانونی افغان باشندوں کی باعزت طور پر وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد صرف غیر قانونی افغان باشندوں کو پاکستان سے محفوظ اور باعزت انخلا یقینی بنایا گیا ہے۔ چمن اور تورخم بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، جو پاکستان کی فراخ دلی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز 1646 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے، جن میں 437 مرد، 430 خواتین اور 777 بچے اپنے ملک لوٹ گئے۔ 121 گاڑیوں میں 425 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی ہوئی۔ اب تک کل 2,54,775 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔
हुकूमत और पाक फौज की जानिब से 1 अक्टूबर से एपेक्स कमेटी के इजलास में अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापस भेजने का फैसला किया गया। 31 अक्टूबर को मोहलत खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से शहरियों ने अपने तासुरात का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाया था ये अफगानियों को बाहर निकालने का, ये बहुत अच्छा इकदाम निकाला था उन्होंने। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, हमारी इकनॉमी में भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ गया है, ये बहुत अच्छी हो गई है। और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम में भी बहुत फ़र्क आ गया है कि लोग पहले अपनी फैमिलियों को भी जो है बाइकों में लेके नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब काफ़ी सुकून है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी गवर्नमेंट का। अब ये मोबाइलें छीन रहे थे अफगानी, कोई बाइक चुरा रहा था, कहीं डकैतियाँ पड़ रही थी, तो ज़्यादातर ये अफगानी ही लोग थे। तो अब हमारे बच्चे महफूज है, जो मतलब बेहतर हो हमारे लिए, हमारे रियासत हमारे लिए वही फैसला करेगी। जो इन्होंने स्टेप लिया बिल्कुल सही स्टेप लिया, सही करा इन्होंने। अफगानियों के जाने से हमारे मुल्क की मईशत बहुत बेहतर हुई है। जब अफगानी यहाँ पे मौजूद थे, चोरी डकैती और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ख़राब थी। जैसे ही वो जिस दिन से वो जाना शुरू हुए हैं उस दिन से इकॉनमी में बेहतरी आना शुरू हुई है, कारोबार बहाल होना शुरू हो गए हैं और चोरी डकैती मतलब बहुत कम देखने में आ रही है। हमारी रियासत ने जो इकदाम उठाया था अफगानियों को जो अपने मुल्क भेजना, तो उससे जो है बेहतरी हमारे मुल्क में बेहतरी आई है और उससे जो है ना बताओ हमारी इकॉनमी भी ऊपर गई है और जो है ना बताओ हमारे मुल्क के मसाइल भी हल हो गए। स्ट्रीट क्राइम और मुख्तलिफ वारदात भी जो है उसमें भी कमी वाक़ई हो गई है, बल्कि ख़त्म ही हो गई है। अक्सर वारदात के अंदर ज़्यादातर जो है अफगानी मुलव्विस हुआ करते थे और जिसकी वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही थी। अफगानियों की एक रश होके रह गया था कि वहाँ पे किसी ने गोली मार दी, वहाँ पे किसी ने लूट लिया, कोई गाड़ी छीन के भाग गया। मेरा तजर्बा, मैंने जो देखा, मैं ये अल्फाज नहीं उठाती, मैं ये नहीं कहती, मगर मैंने ये देखा कि जैसे जैसे अफगानी जा रहे हैं इस मुल्क से बाहर, हमारे पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। हमारे रियासती इदारों ने जो इकदाम उठाया था कि इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाए, तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी भी माशाल्लाह से डेवलप हो रही है और पाकिस्तान के हालत भी बेहतरी की तरफ हो रहे हैं। हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह कानून के पाबंद हैं। हम अपनी फौज के साथ थे, हैं और सारी ज़िंदगी रहेंगे। जब तक हमारे दम में दम है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। और फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया। मुहिम के दौरान बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का मकसद मुल्क को मुकम्मल तौर पर पोलियो से पाक करना है। वालिदैन अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए हिफाजती कतरे पिलवाएं। मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल तक की उम्र के 74,76,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए सूबे भर में तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील दी गई हैं और मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया है। पोलियो मुहिम मखसूस अजला में 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में पेशावर, बन्नू, मर्दान, कोहाट, मालाकंड समेत हज़ारा डिवीजन के तमाम अजला शामिल हैं। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 66,18,200 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के लिए सूबे भर से तरबियत याफ्ता 31,000 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए 53,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में 3 रोज़ा मुहिम के दौरान 2,58,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम को कामयाब करने के लिए 1,500 मोबाइल टीमें और 2,000 से ज़ायद टीमें मुकर्रर की गई हैं। अस्तौर में पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में हुई। इस मौके पर DC अस्तौर ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। जामे कराची में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन स्कूल ऑफ लॉ की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में बोहरी जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने इमारत का इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी ने कहा कि सैयदना सैफुद्दीन ने कराची में नई यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया है, जिसका इफ्तिताह जल्द होगा। उनका कहना था कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की समाजी खिदमात सरहदों और कौमियतों से बालातर हैं। तालीम और सेहत के शोबे में बोहरा जमात की खिदमात शानदार हैं। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और
जमात की मुमताज़ शख्सियात मौजूद थीं। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में अब तक 11,902 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया और 11,454 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। इन बिजली चोरों को 78 करोड़ 89,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। आयद करदा जुर्माने में से 40 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल की जा चुकी है। बिजली चोरों में 11,383 घरेलू और 313 कमर्शियल सार्फिन भी शामिल हैं। मैपको सर्विलेंस टीमों और पुलिस की मुश्तरका ऑपरेशंस में 54,643 नादहिंदगान से 1 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। 47,473 घरेलू डिफॉल्टर्स से 57 करोड़ 83 लाख रुपए, 3,246 नादहिंदा ताजरों से 4 करोड़ 42 लाख रुपए, 264 डिफॉल्टर सनतों से 6 करोड़ 26 लाख रुपए, 3,581 नादहिंदा किसानों से 49 करोड़ 26 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। 1971 में मशरकी पाकिस्तान के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान के महाज पर भी पाक फौज के अफसरान और जवान सरहद पर दिफाए वतन में दुश्मन के सामने डटे रहे। पाक फौज की मायानाज यूनिट 20 लांसर्स के चार्ली स्क्वाड्रन ने हरार खिद से हरार कलां तक के इलाके पर दुश्मन के बड़े हमले को नाकाम बनाया। 7 और 8 दिसंबर 1971 के शब हरार खेत से हरार कलां के दिफा पर मामूर चार्ली स्क्वाड्रन पर दुश्मन की आर्टिलरी ने मुसलसल 1 घंटा शदीद गोलाबारी की, जिसके बाद डोगरा बटालियन और सिंकर्स हॉर्स टैंक रेजिमेंट ने भरपूर दिफा किया। इस हमले को चार्ली स्क्वाड्रन ने इंतहाई दलेरी और जवां मर्दी से नाकाम बनाया, जिसमें दुश्मन भारत को भारी जानी नुकसान हुआ। इस हमले में चार्ली स्क्वाड्रन की दलेरी के बाद दुश्मन के 24 सिपाही हलाक और 65 शदीद जख्मी हुए। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने कलील तादाद और कम जंगी साजो सामान के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दाम इकट्ठे किए। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत के मेजर जनरल गुरचंद सिंह का पाकिस्तान फौज की बहादुरी और हिकमत अमली का एतराफ़ जो उन्होंने अपनी किताब इंडियाज़ आर्मोर में किया है। और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां भारतीय फौजियों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने जिला बारामूला में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। फौजियों ने जिला पूंछ के इलाके मेंढर में भी कई अफराद को गिरफ्तार किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और तंजीमों ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इलाके में इंसानी हकूक की बदतरीन सूरत हाल का नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, अब्दुल अहाद, मोहम्मद सलीम जरगर, एडवोकेट अरशद इकबाल और मौलाना मसब नदवी ने श्रीनगर में जारी अपने अलग अलग बयानात में अफसोस का इजहार किया कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने और इनकी ज़मीनें छीनने पर तुली हुई है। उन्होंने पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया कि वो भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल पर मजबूर करने के लिए आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ धोखे, मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनका ये भी कहना था कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते वक्त बड़े बड़े वादे किए थे, ताहम हकीकत ये है कि आज इलाके में न बिजली है और न ही कारोबार है। पाकिस्तान में डिजिटल मालियाती जराइम के हवाले से कराची के मुकामी होटल में तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में बैंकिंग मुहतसिब सराजुद्दीन अजीज और दूसरे मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान में डिजिटल मालियाती जराइम की बड़ी वजह सार्फिन की आगाही में कमी है। बैंकों को डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अपने तरीक़ेकार को बेहतर बनाना होगा। मुकर्ररीन ने कहा कि मालियाती इदारों को अपने अंदर साइबर और डिजिटल सिक्योरिटी का माहौल पैदा करना होगा, बसूरत दीगर सार्फिन का डाटा महफूज नहीं रहेगा। बैंकों को सार्फिन की आगाही पर सरमायाकारी करनी होगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे और मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के नतीजे में साहिवाल में गंदम की काश्त में इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं खाबर अली की। जिला साहिवाल में गंदम की काश्त का हदफ 2,75,000 एकड़ मुकर्रर है, जिस पर गंदम काश्त की जा रही है, जिससे 44 मन फी एकड़ पैदावार मुतवक्के है। इस साल जिला भर में गंदम का पैदावारी हदफ 4,92,000 टन मुकर्रर किया गया है। पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के मनसूबे के तहत महकमा ज़राअत काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी रहनुमाई फराहम कर रहा है। अगर कुछ काश्तकार किसी वजह से लेट हो गए हैं गंदम की बुवाई करने के लिए, वो 30 नवंबर तक गंदम की बुवाई मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गंदम की बुवाई 30 नवंबर के बाद करेंगे तो पैदावार
कम होने का एहतमाल होगा। गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत तस्दीक शुदा बीज, खाद, मेयारी दवाएं और दूसरी ज़रूरी ज़रूरियात की काश्तकारों को दस्तयाबी को यकीनी बना रहा है। पिछले 3-4 साल से जो महकमा ज़राअत एक्सटेंशन वाले हैं वो हमारे फार्म पे आ रहे हैं और हमारी फसलों का विजिट करते हैं। गंदम के काश्तकारों को जदीद तरीका काश्तकारी से आगाह करने के लिए जिला भर में गंदम के 172 नुमाइशी प्लाट लगाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत का फील्ड स्टाफ गंदम के काश्तकारों को जदीद तरीका काज से आगाह करने और पैदावार को बढ़ाने के लिए जिला भर में फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए तरबियत दे रहा है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। और पंजाब भर में गंदम के मुकर्रर करदा पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम और काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के नतीजे में ज़िला ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में गंदम की काश्त में इजाफा हो रहा है। मोहम्मद अनवर अंसारी की रिपोर्ट। तहसील सांगला हिल में गंदम की काश्त का हदफ 53,000 एकड़ है, जिससे 40 मन फी एकड़ पैदावार मतवक्को है। पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के मंसूबे के तहत महकमा ज़राअत काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी रहनुमाई फराहम कर रहा है। 31 नुमाइशी प्लाट लगा रहे हैं, जिसमें हम हर जिम्मेदार को 20,000 रुपया फी एकड़ जो नुमाइशी प्लाट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा के लिए महकमा ज़राअत तस्दीक शुदा बीज, खाद, मायारी दवाएं और दूसरी ज़रूरी ज़रूरियात काश्तकारों की दस्तयाबी को यकीनी बना रहा है। महकमा ज़राअत के तावन से 40 मन से ज्यादा फी एकड़ गंदम हासिल करेंगे। वक्त काश्त और बर वक्त खादां दा इस्तेमाल, ये सारियां चीज़ां जड़ियां महकमा ज़राअत जिहड़ा जिमीदारां नूं दस रहे। गंदम के काश्तकारों को जदीद तरीका काश्तकारी से आगाह करने के लिए जिला भर में गंदम के 199 नुमाइशी प्लाट लगाए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत का फील्ड स्टाफ गंदम के काश्तकारों को जदीद तरीका काश्त से आगाह करने और पैदावार बढ़ाने के लिए तहसील भर में फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए तरबियत भी दे रहा है। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सांगला। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि लाहौर शहर की फ़ज़ा आज भी स्मॉग की लपेट में है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन से। जी मौसम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? अच्छा, बिल्कुल, लाहौर शहर का शुमार आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में किया जा रहा है। लाहौर शहर की फ़िज़ा जो है वो शदीद स्मॉग की लपेट में है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए थे गुज़श्ता 3 दिनों में देखा कि स्मॉग जो है वो नीचे आई थी और लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ था। गुज़श्ता रोज़ लाहौर शहर की तमाम कारोबारी मराकज़ जो थे वो बंद थे। माल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, वहाँ पर साइकिल रैली निकाली गई। तो लाहौर शहर की स्मॉग जो है कल उसके लेवल नीचे आए थे, लेकिन आज एक बार फिर जब तमाम कारोबारी मराकज़ एक बार दोबारा खुले हैं और स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, लाहौर शहर की जो सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, तो एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब हो रहा है और स्मॉग का जो लेवल है ऊपर जा रहा है। लाहौर शहर की जो फ़िज़ा है वो खतरनाक हद तक जो है वो आलूदा हो चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल तौर पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने जुमे के दिन और हफ्ते के रोज़ तमाम स्कूल तालीमी इदारों को बंद किया, मार्केट्स को 3 बजे के बाद खोला, गुज़श्ता रोज़ 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खुले, पूरा दिन कारोबारी मराकज़ बंद रहे, तो उससे स्मॉग की शिद्दत में कमी वाक़ हुई थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से धुआं छोड़ती गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं, गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। उसके अलावा जो फसलों की बाकियात जला रहे हैं उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है और मुस्तकिल तौर पर किसानों के जुर्माने भी किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी मिलाई जा रही हैं। लाहौर शहर की सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि लाहौर शहर में आइंदा अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है और बारिश से ही लाहौर शहर की फ़िज़ा जो है वो कुछ बेहतर होगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आएगा। माहिरीन सेहत ने लाहौर शहर के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। उनका ये कहना है कि मास्क के बगैर घरों से बाहर ना निकलें और गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल भी सफ़र ना करें, खिड़कियों को बंद रखें और अपने आप को स्मॉग से बचाएं। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से अपील की गई है कि शहरी भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और कोशिश करें कि घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और मास्क का इस्तेमाल करें। जी, बहुत शुक्रिया मौज़मुद्दीन। नाज़रीन, बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की आज 67वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी सहाफ़ती खिदमात का अहाता कर रही हैं लाहौर से वर्दा सलीम अपनी रिपोर्ट में। बेबाक सहाफ़ी, शोला बयान मुकर्रर और कादरुल कलाम शायर मौलाना ज़फ़र अली खान कलम कबीले के रूह रवां हैं। 1873 को वज़ीराबाद के गांव में पैदा होने वाले ज़फ़र अली खान की तमाम जिंदगी जदोजहद से इबारत है। पटियाला से मैट्रिक किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद हैदराबाद चले गए और अपनी इल्मी और अदबी सरगर्मियाँ जारी रखी। मौलाना ज़फ़र अली खान इलामा इकबाल के हमअसर और साबे बसीरत रहनुमा थे। उन्होंने अपनी खुदादार सलाहियतों की बदौलत मुसलमानों की आज़ादी के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। मौलाना ज़फ़र अली खान ने 1910 में अपने
अखबार जिम्मेदार की इदारत संभाली और उसके जरिए बरसगीर की सहाफती, सियासी और मजहबी तारीख रातों को बकाए नूर में बदल दिया। उन्होंने पंजाब में मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया। उन्होंने अपनी पुरअसर तहरीरों से बरसगीर के मुसलमानों में अलहदा वतन की उमंग पैदा की। उनकी इन्हीं शानदार सहाफती खिदमात के इतराफ में उन्हें बाबा सहाफत का खिताब दिया गया। मौलाना जफर अली खान कई किताबों के मुसन्नफ भी थे। मौलाना जफर अली खान 1937 में मरकजी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। लाहौर में मस्जिद शहीदगंज की शहादत के सहाने के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना ने क़याम पाकिस्तान तक तहरीक आज़ादी में भरपूर किरदार अदा किया, मगर पाकिस्तान बनने के बाद खराबी सेहत की बिना पर अमनी सरगर्मियों से अलहदगी इख्तियार कर ली। 27 नवंबर 1956 को अपने खालकी हकीकी से जा मिले। उन्हें वजीराबाद के गाँव करमाबाद में सपुर्द खाक किया गया। मौलाना जफर अली खान की इल्मी और अदबी सहाफती खिदमात तारीख का रोशन बाब है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आज दुनिया भर में पायदार सफरी सहूलियात का दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से देखते हैं शिराज अली डाहरी की रिपोर्ट। आलमी योम पायदार ट्रांसपोर्ट मनाने का मकसद दुनिया भर में बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती खदशात के दौर में माहौल दोस्त, मसावी और काबिल रसाई नकलो हरकत के निज़ाम की अहमियत पर जोर देना है। फ़ज़ाई आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली, सेहत आमा के मसाइल, लोगों को सफरी सहूलियात और जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को आलमी सतह पर मनाने का फैसला किया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, शहरी इलाकों पर दबाव, कौमी आमदनी और पैदावार में इजाफे के साथ साथ माल बरदार गाड़ियों और मुसाफिरों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। औसतन सालाना 2.5 लाख कारें, लाखों मोटरसाइकिलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। आलमी दिन मनाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट का, तो इस हिसाब से तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक नेटवर्क को बनाएं जिसमें हमारे जो है लेडीज़ के लिए, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हज़रात के लिए, माज़ूर अफराद के लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के शोबे में इस्लाहात नकलो हरकत के ज़राए में मुतबादिल और काबिल तजदीद तवानाई और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों, हाइब्रिड, बायोफ्यूल, शमसी तवानाई को ज़्यादा इस्तेमाल और इम्पोर्ट ईंधन पर कम इन्हिसार से ट्रांसपोर्ट की लागत को भी कम किया जा सकता है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी लाकर शहरियों के लिए सेहतमंद, ज़्यादा मसावी और पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार की जा सकती है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हैदराबाद। और बुलेटिन में अब आपको लेकर जाएंगे किताब मेले में। इस्लामाबाद में जारी किताब मेले में दूसरे दिन इल्मी और अदबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहा। लोगों की बड़ी तादाद ने किताब मेले में शिरकत की और यहाँ होने वाले मुख्तलिफ सेशन से इस्तिफादा किया। मलिक उमर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के पाक चाइना सेंटर में जारी किताब मेले में तलबा के हवाले से खुसूसी सेशन का इनेकाद हुआ। शोबा तालीम से वाबस्ता मुमताज स्कॉलर्स के माबैन तालीम की राह में दरपेश मसाइल और तालीमी इदारों में किताब खानी के कल्चर को फरोग देने के लिए मुबाहिसे का इनेकाद हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने दिलचस्पी का इजहार किया। मुकर्रीन का कहना था कि किताब खानी की रिवायत को जब तक मुस्तहकम नहीं किया जाता, बाशऊर और तालीम याफ्ता मुआशरे को जन्म नहीं दिया जा सकता। इस मेले में बच्चों के लिए बेशुमार मौके हैं, बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका मिलता है, किताब से जुड़ने का मौका मिलता है। ज़्यादा पैनल्स, इसको ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत टाइम लगता है, खर्चा होता है, तो ये सब करने के लिए साल में एक दफ़ा भी हो जाए और अच्छी तरीके से जिस तरह यहाँ होता है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। यहाँ पे एक ही छत तले हर किस्म की टॉपिक, बच्चों की कलरिंग बुक से लेके फिलॉसफी तक की बुक्स जो है ना उधर अवेलेबल है। स्टोरी टेलिंग और परफॉर्मेंस के हवाले से होने वाले सेशन में भी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और किस्सा खानी के जदीद तकाज़ों और परफॉर्मिंग आर्ट से मुतल्लिक आगाही हासिल की। यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ किताबें देखने आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी और सस्ती किताबें हैं। एक सिंधी का स्टॉल था वहाँ पर, हाँ, और वहाँ पर किताबें बहुत सारी स्कूल का स्टॉल है वहाँ पर, और कुरान मजीद का तर्जुमा भी किया हुआ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने बुक बनाया है और मैंने ये नीचे आज पढ़ा है ना, तो मुझे गिफ्ट मिले। मुझे काफ़ी अच्छी ओ लेवल्स की भी मिली हैं, हमारी मेट्रिक के लिहाज से भी मिली हैं, और अच्छी पुरानी हिस्ट्री की भी हैं। किताब मेले में बच्चों और नौजवानों के अदब के हवाले से भी खुसूसी मुबाहिसे का इनेकाद हुआ। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में कदीम रवायती रस्म निसालों का बाकायदा आगाज हो गया है। जिला गिजर की तहसील अशकोमन में 1100 साल कदीम रिवायती और सकाफती रस्म निसालू शायान शान तरीके से मनाई जा रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं गिजर से हिदायत शाह की। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में कदीम रिवायती रस्म निसालू का बाकायदा आगाज हो गया। जिला गिजर की तहसील अशकोमन में 1100 साल कदीम रिवायती और सकाफती रस्म निसालू हर साल की तरह इस साल भी शायान शान तरीके से मनाई जा रही है। इस कदीम रस्म को इज्तमाई तौर पर सर अंजाम देने के लिए
इत्तेफाक राय से नवंबर के तीसरे हफ्ते का दिन मुकर्रर होता है। इस दिन अशकुमन वैली का हर घराना एक जानवर ज़िबह करता है जिसे मकामी ज़बान में नसालू कहा जाता है। 1200 घरानों पर मुश्तमिल इस वैली में एक ही वक्त 1200 से जायद माल मवेशी, खासतौर पर पहाड़ी बैल याक ज़बह किए जाते हैं। ये एक 1100 साल पुरानी एक रस्म है जो गिलगित बल्तिस्तान में मुनफरद तरीके से इस कौम बराबर में मनाते हैं। उस दिन तकरीबन 1200-1500 घरानों में एक एक माल ज़बह होता है और इसका गोश्त मौसम सरमा के लिए लोग जमा करते हैं और मौसम सरमा में इस गोश्त को नूश करते हैं। याक एक ममालिया जानवर है जो गाय और बैल से मिलता जुलता लेकिन जिसामत में बड़ा और मजबूत होता है। ये जानवर हिमालय के इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, चीन, भारत और नेपाल में पाया जाता है। गिलगित में ज़िला गिजर याक की पैदावार के लिए मशहूर है। गिलगित मार्केट में नसालू और दीगर जरूरियात के लिए याक ज़िला गिजर और चित्राल के इलाके बरोगल से ही सप्लाई होते हैं। इलाके का नंबरदार दिन का तयन करके इस मुहिम का ऐलान करता है। नसालू का बुनियादी मकसद मौसम सरमा के दौरान मियारी खुराक की फराहमी और तवानाई को बहाल रखना है। गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में 5 दिसंबर से 21 दिसंबर तक लोग अपनी इस्तात के मुताबिक जानवरों को ज़िबह करते हैं और गोश्त को स्टोर में छत से टांग कर रखा जाता है और जरूरत के मुताबिक उतार कर पकाया जाता है। माहिरीन का कहना है कि इस दौरान ज़िबह किए जाने वाले जानवरों का गोश्त सड़ता नहीं बल्कि फ्रीज होकर काफी अरसे तक इस्तेमाल के काबिल रहता है। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। ताहम इस दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद और बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहा, जबकि जुनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं रही। लह में -3, स्कर्दू और गोपस में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम की शिद्दत के बायस लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बल्तिस्तान डिवीजन के तमाम अजला में आज मतला मुकम्मल तौर पर अब्र आलूद रहेगा। स्कर्दू के मज़ाफ़ात में रात भर बर्फबारी और शहर में मौसम अब्र आलूद होने की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। आज इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन परवाज़ भी मनसूख कर दी गई। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।